यूपीएससी ने हमसे 2022 में क्या पूछा, नॉन फंजिबल टोकन के ऊपर पूछा। दे कैन इनेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, ठीक है, ये ठीक है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स, दे कैन एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। दे कैन बी ट्रेडेड एंड एक्सचेंज at equivalent, therefore can be used as a medium of commercial transaction. They can be traded and exchanged. ए या डी लग रहा है, ए है, क्योंकि इन्हें कमर्शियल ट्रांजेक्शन के रूप में थोड़ी यूज़ कर सकते हैं नॉन फंजिबल टोकन को, NFT। देन यूपीएससी ने हमसे 2018 में पूछा था बैले सेकंड वाला। ये जो बैले सेकंड है ये किससे जुड़ा हुआ था यार, एक सेकंड मैंने पढ़ा तो था, ब्लॉकचेन तो क्रिप्टोग्राफी से जुड़ा हुआ था। अब यूपीएससी ने हमसे 2020 में ब्लॉकचेन के ऊपर पूछा था। It is a public ledger that everyone can inspect, which and no and which but which no one single user control, ठीक है। Application depend on the basic feature, blockchain can be developed without any permission, ठीक है। और ये क्रिप्टोग्राफी में यूज़ नहीं हो रहा है, ये हर चीज़ में यूज़ हो रहा है ना, बैंकिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो पहले सेकंड वाला है ना, ये जापान की उन एक पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है जो जापान के कुसुबा शहर में के हाई एनर्जी एक्सेलरेटर में है। यार पहले तो इन्होंने कुछ और बताया था, चलो बाद में देखते हैं उसको। अब क्या हुआ, ये जो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट कॉटियस ऑप्टिमिज्म अप्रोच, कंसीडर द स्टेटमेंट ट्रू एज अनलेस you know it's false, it contradicts the question, it breaks some fundamental law of science, है ना। It does not matter if it is illegal, unethical, immoral or unconstitutional, because science amoral. Now focus among token. We can create token for something like in mall or shop. We give the token holder a right, some kind of priority, ownership or essence. However, token cannot be used outside the shop and mall as money to other. NFT work almost same logic. Statement 3 is incorrect, ठीक है। अब है नॉन फंजिबल टोकन, यूनिक digital asset verified using blockchain technology, ensuring an ownership and authenticity. Invisibility. Unlike cryptocurrency, NFT cannot be divided into smaller unit, कि जैसे क्रिप्टो करेंसी को डिवाइड कर सकते हो ना आप, इनविजिबिलिटी, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी को डिवाइड कर सकते हो स्मॉलर यूनिट में, पर नॉन फंजिबल टोकन को आप डिवाइड नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग स्मॉलर यूनिट में। ये एक होल आइटम होता है। यूनिकनेस, ईच NFT हैज डिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट मेकिंग इट यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। हर NFT यूनिक होता है। एप्लीकेशन, यूज इन डिजिटल आर्ट, कलेक्टिव बाइल, गेमिंग, virtual real estate and intellectual property right. Ownership provide proof of ownership of digital asset, allowing creator to monetize their work directly, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, interoperability, NFT can be traded across different platform marketplace, enhancing accessibility and value. Smart contract, NFT are often created and managed using smart contract on blockchain platform like Ethereum. Environmental impact, in energy consumption of blockchain network used for NFT raise concern about their environmental footprint. NFT can often created and managed using smart contract. अब डायमंड बैटरी, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है ना, ये एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना।
मतलब खरीदे बेचे जा सकते हैं, पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन थोड़ी हो सकता है। डायमंड बैटरी, what is new battery that never dies? Scientists from the universities of Bristol and UK Atomic Energy Authority have developed the world's first carbon 14 diamond battery on groundbreaking sustainable energy source. Key feature, working principle: the battery use man-made diamond that generate electricity when placed in radioactive field. The diamond incorporate carbon-14, a radioactive isotope with half-life of 5,700 years, widely used in radiocarbon early energy function like early energy conversion मिलेगी solar panel से, but instead converting light, it harness energy from fast moving electron emitted during radioactive decay. Enhanced diamond to absorb diamond short range radiation safely, generate low level consistent electricity without leaking. एक सेकेंड। ये जो डायमंड बैटरी में, इसमें ना क्या करते हैं, C14 कार्बन को डायमंड की शेप में बैटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। बैटरी यूजेस मैन मेड डायमंड बैटरी मैन मेड डायमंड को यूज करती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, प्लेस इन रेडियो एक्टिव फील्ड वाया। जो इसमें डायमंड बैटरी में मैन मेड डायमंड यूज होता है। डायमंड इनकॉर्पोरेट C14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। ठीक है, ये भी ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, शुरुआती एनर्जी लेते हैं सोलर पैनल से, बाद में अपने आप ही एनर्जी आने लग जाती है। इनकेस्ड, एब्जॉर्ब शॉर्ट रेंज रेडिएशन सेफली, जनरेट लो लेवल कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट लीकेज भी नहीं होती। मैन मेड डायमंड यूज हो रहा है, कार्बन C14। पोटेंशियल एप्लीकेशन, मेडिकल डिवाइस कैन पावर पेस मेकर, हियरिंग एड्स, ocular device due to long lifespan and compact size, है ना। स्पेस मिशन, आइडल फॉर सैटेलाइट स्पेस, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, बिकॉज इट्स ड्यूरेबिलिटी एनर्जी आउटपुट, इस मतलब बहुत साल ये लाइफ टाइम चल सकती है ना। ठीक है, ये बहुत साल चल सकती है। ठीक है, ये पढ़ लिया। मशीन लर्निंग पढ़ लो। मशीन लर्निंग, AI मशीन लर्निंग टू हेल्प इंडियन फार्मा इंडस्ट्री टू पीवॉट एंड इनोवेशन। फार्मा इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। ऑकुलर डिवाइस का मतलब होता है आंखों से जुड़े उपकरण, साले आंखों से आई रिलेटेड उपकरण बोल देते। ऑकुलर डिवाइस जो ऊपर था ना, द हियरिंग एंड डिवाइस ड्यू टू ऑकुलर डिवाइस, आंखों से जुड़े उपकरण। अब मशीन लर्निंग में भाई इस सबसेट AI सिस्टम वेयर डाटा मेक प्रोडक्शन ऑफ डिसीजन। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI, सब AI का सबसेट है। इस सिस्टम में क्या होता है, डाटा का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए और डिसीजन के लिए, विदाउट एक्सप्लिट प्रोग्रामिंग के। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, यूज लेबल डाटा लाइनर, यूज सुपरवाइज डाटा फाइंड पैटर्न, ये हमने उसमें कर लिया जहाँ नोबेल प्राइज़ वाले में। सुपरवाइज लर्निंग, फाइंड इन पैटर्न, ये इसमें पैटर्न फाइंड करता है। इन अनलेबल डाटा, जो छुपे हुए पैटर्न होते हैं वो फाइंड करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, लर्न थ्रू रिवॉर्ड इन इन्वायरमेंट। एक सेकंड के लिए, इसमें जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, इसमें ना एजेंट अपने अनुभव से सीखता है, मीन्स जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना उससे सीखता है। और इसमें रिवॉर्ड इनाम एंड सजा के आधार पर होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक एजेंट बार बार कोई काम करता है, अगर सही काम करता है तो उसे इनाम मिलता है, गलत काम करता है तो उसे सज़ा मिलती है। समय के साथ वो सीख लेता है क्या करना सही है। इसका उपयोग गेम, रोबोटिक्स और सेल्फ ड्राइविंग कारों में होता है।
अब इसके एजेंट, निर्णय लेने वाला रोबोट या सॉफ्टवेयर, इसमें एजेंट, इन्वायरमेंट जिसमें एजेंट काम करता है, जैसे गेम असली दुनिया। रिवॉर्ड, अच्छा काम करने पर पॉइंट या इनाम। पेनल्टी, गलत काम करने पर नुकसान। गोल, ऐसा व्यवहार सीखना लंबे समय तक रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड का चलना, जैसे एक रोबोट का चलना, ठीक है, ये हो गया। की कंपोनेंट, डाटाबेस चाहिए टेस्टिंग के लिए, मॉडल चाहिए। लॉस फंक्शन, मेजर प्रिडिक्शन एरर। ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमाइज लॉस, ठीक है। एप्लीकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, ये सब ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि मशीन को सिर्फ डाटा दिया जाता है, जब कोई जवाब नहीं बताया जाता। मशीन खुद यह सीखती है कि डाटा में कौन से आइटम एक जैसे हैं और उन समूहों को कलेक्टर में बांट देती है। इसका उपयोग ग्राहक विभाजन सिफारिश प्रणाली के आधार पर चलता है। सुपरवाइज लर्निंग में ना सुपरवाइज लर्निंग में डाटा के साथ सिखाया जाता है। सुपरवाइज लर्निंग में डाटा के साथ सिखाया जाता है। ये है मशीन लर्निंग, ठीक है।